मैं पहले जैसा बताया आपको, when I was reading Upanishad in one chapter, there's one small thought struck me. That was that life is breath, breath is life. They are bound so strongly that any one of them, if it is anyone tries to snatch it away, it becomes a grievous crime. So based on that, the story was developed, and it's about a young mind's response to a certain incident in his life, which has a tremendous impact on his thinking process, and it becomes a process of introspection to find out what he is intending to react, the way he wants to react to the situation, whether it is relevant or it is something which is very unlawful by itself. So an element of crime starts influencing his thinking process, and in the process he finds a solution to that kind of an impact, and gradually he discovers a new life in his own breath. This is the story about. So one thing that got you automatically connected to the story, I mean, while you were working on the project, what was that thing that, I mean, it came, I mean, your inner voice actually, and you got struck? And as I told you, that it's an introspection, and it's actually a psychological analysis of the human mind, that how a human mind can be totally affected by certain intentions or certain ideas which can completely destroy the value of human life. And this is what we are trying to bring back, the idea that you only when you start introspecting, you have the ability to assess, process and analyze, then only you will be able to understand what exactly you are intending to do. Because sometimes the darker side of human life takes a strong hand over the right side of your thinking process, and then that is how it starts acting, and that's where one starts losing its own value. So in order to realize your own value, realize your own potential as a human being, this is how you have to process your thinking process, and then you will find a new solution to all these disturbing thoughts. So producer से सवाल है, जब ये कहानी आपने सुनी, जब आपको पता चली कि इस तरह का कॉन्सेप्ट है उस पे करना है, पहली चीज क्या ध्यान में आई सर? आपको जुड़ना था इस प्रोजेक्ट के साथ या कुछ और चीजें आपके? पहली चीज़ आई कि हम ऐसा एक चीज़ करना चाहते थे जो हटके हो, कुछ मैसेज, स्ट्रांगली मैसेज जाए, क्योंकि एक सिनेमा एक माध्यम है जिसमें हम एक चीज़ को बहुत वर्ल्ड वाइड दिखा सकते हैं. तो मुझे सर का चीज़ बहुत अच्छा लगा, और सर का साथ काम करने का, क्योंकि वो इतने अवार्ड्स ले चुके थे, इतने अच्छे अच्छे फिल्म दे चुके थे वो वर्ल्ड सिनेमा को. तो हमने बोला कि यहीं से हमारा शुरुआत करते हैं. तो मैंने इमीडिएटली प्रोसीड्स की सर का साथ कैसे काम किया जाए. लेकिन हम सब जानते हैं सर, प्रोड्यूसर की कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है जब एक फिल्म बनानी जब आती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं. क्या कुछ परेशानी आई आपको जब फिल्म बन रही है अभी भी, क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मेरे लिए तो बहुत नया चीज़ था कि इस तरह का एक फ़िल्म बनाना, और जिसमें हमें बहुत सारा लोकेशन चाहिए था, जंगल चाहिए था, फॉरेस्ट चाहिए था, और सर का जो जो रिक्वायरमेंट था उसको मीट करना. एक वर्ल्ड क्लास फिल्म बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए था, मुझे सीखने को बहुत मौका मिले. हमने बहुत काम किए सर का साथ. मैंने बहुत सीखने की कोशिश की कि कैसे एक वर्ल्ड क्लास सिनेमा बनाया जाता है. सर अंतर्ध्वनि की बात कीजिए तो टाइटल कहीं कहीं सस्पेंस नजर आ रहा है, मतलब किस तरह का कहानी इनर वॉइस, जैसा कि आप इनर वॉइस जो आपके अंदर से आता है, आप पूरा फिल्म जब देखेंगे, अंदर का आवाज़, एक इंसान का अंदर का आवाज़, तो जब फिल्म आप देखेंगे तो वहाँ रिफ्लेक्ट होगा कि हमारा स्टोरी क्या है, क्यों. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये से फिल्म मेकिंग इज़ सच ए इंटीग्रेटेड प्रोसेस, जिसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कोई भी एक इंडिविजुअल्स हो, whether it is a director or whether it is a producer, unless until there is some kind of a coherency, there is some kind of a harmony, there is some kind of an understanding, then only you will be able to work very well. And especially in this case, Mr. Rajesh, I must tell you, he is very daring, so daring that he takes its own risk without feeling even a little pinch that he is being tremendously pressurized. And that's what it gives, the kind of a freedom,
In that freedom, you act and you react, and then you also create something which you intend to do. And that's why I think it's a tremendous positive sign from the producer's point of view. इवन द म्यूजिक डायरेक्टर आई मीन पोस्टर जब देखते हैं तो बहुत सारे शेड्स दिखाई दे रहे हैं उसमें कि ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है हालांकि आपको आई गेस कुछ परेशानी हुई इसके वक्त म्यूजिक बनाते वक्त या कैसे था पूरा नहीं, परेशानी तो नहीं हुई बिकॉज काफ़ी साल काम करते हुए बॉलीवुड में यस एक ये था कि हम जितने बॉलीवुड में गाने मैंने जितने भी प्रोड्यूस अरेंज किए हैं ये फिल्म बहुत अलग थी उससे टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट इट्स अ वेरी ऑफ बीट फिल्म इट्स नॉट व्हाट वी रेगुलरली डू इन बॉलीवुड परेशानी ये थी कि इनका एक स्पेसिफिक जॉनर था जो इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था दिस इज़ द बाउंड्री दैट यू नीड टू बी वेरी अंडर करंट म्यूजिक है ना सर वेरी अंडर करंट नॉट टू लाउड एंड आई थिंक मैं और वीर सर डे वन से ही क्लिक कर गए द फर्स्ट टाइम ही मेट मी ही गेव मी अ स्मॉल पीस टू वर्क ऑन and I presented that piece to him and he loved it and I think we just clicked from day one. Yes. And I think there were not too many changes also in the music. It was Actually, I think we in were just fact, meant to meet and music in this film, music has a different character by itself because it is connected to your own sensibilities. It's not just like that you hear and you enjoy this music. It's not like that. It's a music which actually goes deep inside your own self and then trying to bring out a different kind of a feeling, a different kind of a vision in your thought process. So here, about 6-7 म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मेरे साथ मुलाकात हुआ था फिर अल्टीमेटली आई केम बैक एंड आई मेट निशाद and I spoke to him and I explained to him what exactly I want. I didn't want a kind of a music with a kind of a certain rhythm or certain melodious form. It's not like that. So I explained to him and he understood it. And that's what I liked because understanding something and then using your potential, your talent to bring out something in tune with what you have understood, it makes a lot of difference. So he is a talented person. Thank you, sir. He's a very potentially very strong person. At the same time, he could understand what I was trying to communicate to him. And he felt and he realized it and he developed something. And I found there's something very novel he is able to develop. And that was how, that is the basics of our development as far as the music is concerned. And then gradually we give little hints here and there to develop it, to make it more better, and that's the way it works. प्रोड्यूसर सर आपको कैसा लगा म्यूजिक जब आपने सुना या कुछ बहुत ही अच्छा क्योंकि हम लोग पूरा काम कर रहे थे जब भी काम कर रहे थे वो सबसे अच्छा पार्ट लगा कि हम ये वो बहुत क्योंकि जब वीर सर के साथ डिस्कस हो रहा था तो सर बोल रहे थे कैसे करेंगे क्योंकि बहुत सारा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हम बैठते थे ये एक दिन फिर निशाद जी का मेरा पहले से दोस्ती थी तो मैंने ऐसे ही निशाद जी को कॉल लगाया कि आप आ जाइए बैठते हैं फिर जब भी एक ही बार में सर ने उनको बोला और शुरू हो गया तो जो एक ही फैमिली वेट में काम होता है फ्रेंडली में काम होता है तो काम अलग होता है और बहुत अच्छा होता है तो इसी से हमने आगे Veer sir, one last question to you actually. You are a part of the industry since a long time. You did a lot of films. So what do you feel about the way the commercial cinema is growing nowadays? And also we see a lot of parallel cinema also evolving. ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ कमर्शियली देखते हैं और भी तरह की भी फिल्में आ रही हैं नॉट जस्ट बॉलीवुड पर अगर हम मराठी फिल्मों की तरफ जाए बंगाली सिनेमा गुजराती फिल्म ये भी इवॉल्व हो रहे हैं सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन this growing this thing? See, you look at cinema as a kind of a language. Now, when you think of a language, your main concern is how to reach to the people, and how you reach to the people, and in what form you reach to the people, and what novelty you are bringing to develop a new awareness, new understanding in the minds of the people. That's what makes cinema a very, very potential force, and that is how India has been a tremendous country with so much potential, so much talent that they are able to create a lot of credibility in terms of this language. But I still feel
the language needs to be still developed, because that is the clue on the basis of which all the talented people will find a new form of expression within themselves. It's not the question of you like it, so that is the end of it. It's not that. If you like it, why you like it, what is the nature of its liking, and what is the credibility of that liking, and what is the capacity of your reasoning power which makes your liking to be so valuable. So how valuable is your liking will help cinema also to grow. And that's what I look at. Talvinder, Saina Mall. Yeah, roll. Roll, ma'am. Hello, I am Swapna Pati and the lead actor of Antardhwani. Hi, my name is Gaurav Paswala and I'm also lead actor of Antardhwani, not an actress. मेरा नाम तलविंदर सिंह है और मैंने शांतनु का किरदार निभाया इस फिल्म में। शांतनु का डबल रोल किया इसमें। जब अंतर्ध्वनि जो शब्द हम सुनते हैं, पहली चीज जो आप लोगों के ध्यान में हाँ, अंतर्ध्वनि जैसे सबको लगता होगा कि इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। तो मैंने भी वही सुना कि अंतर्ध्वनि जब नाम फाइनल हुआ तो जब मेरे पास स्टोरी आई, देन मेरी भी इनर वॉइस जो बोली कि क्या है एक्चुअली में अंतर्ध्वनि है क्या। और मैं जब स्क्रिप्ट के ऊपर गई, क्योंकि हर एक्टर पहले काम करने से पहले स्क्रिप्ट क्या है देखना चाहता है, जब मैंने देखा तो मेरी इनर वॉइस कहा कि नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, यू शुड वर्क। तो मैंने ये काम किया अंतर्ध्वनि में। Sorry, what was the question? अंतर्ध्वनि, definition of अंतर्ध्वनि according to you, and how do you relate to it? How do I relate to it? Yeah, I think it's a very simple thing. Antardhwani, which means inner voice, and everybody, हम सबके पास होता है. Like day-to-day life में भी, like, you know, whatever you're doing, I'm talking to you right now, but I have certain things going in my back of my mind. So it's the thought that goes in the back of your mind is Antardhwani. And how do I relate to it? It's a very different subject, and when you read the story, you feel like it's not something that you've seen so far. जो बोलते हैं psychological कहानी जो होती है, which is something that hasn't come out so much yet. So I just felt like it's definitely worth a shot, and we did the best we can. So that's as much of relating as we could have done. जब मैंने पहले इस फिल्म का नाम सुना अंतर्ध्वनि, तो पहला विचार मेरे मन में यही आया कि अंतर आत्मा की कोई आवाज़। लेकिन फिर मैं एज ए एक्टर मैंने सोचा कि हर एक बंदा, हर एक कैरेक्टर, कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, हर एक की जो अंतर आत्मा की आवाज़ अलग अलग है, उसके काम के हिसाब से है। फिर मैंने जब स्क्रिप्ट को पढ़ा, धीरे धीरे पता चला कि क्या है। ये हम सिर्फ पोस्टर ही देख रहे हैं, कहानी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। अगर बेसिक अगर आप कुछ बता पाए कि क्या कहानी है और आप किस तरह से इससे असर। कहानी के बारे में तो हमें भी कुछ पता नहीं। ज़्यादा एक आई थिंक जो मैंने पहले बताया कि इट्स अ स्टोरी अबाउट यंग इंडिविजुअल्स जो आज के ज़माने के लोग हैं, लड़का लड़की, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। हम लोग जो भी पिक्चरें देखते हैं, देयर आर मोर टू डायमेंशनल, कि आप देखते हो कि ये सिचुएशन हुई, उसके बाद इसने ऐसे रिएक्ट किया या वो, बट लाइक यू नो व्हाट हैपन्स इनसाइड योर हेड when something drastic happens in your life, like there are a lot of inner demons that happens, and how do you deal with that? So that is what the film is based on. And story के बारे में तो I don't think I can even if I try, मैं इतना बता नहीं पाऊंगा because I don't have proper words to actually explain it. She can actually No, I can explain my character only in this film. मुझे I don't know कि पूरी फिल्म में भी आपको बता नहीं सकती। हमें लगता है कि डायरेक्टर सर ने आपको पहले ही बता चुके होंगे कि अंतर्ध्वनि क्या है, इट्स ऑल अबाउट। तो मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी कि मेरा नाम इस फिल्म में शालिनी है, और शालिनी शी बिलोंग्स फ्रॉम ए फार्मर फैमिली जो कि दुनिया को कुछ डिफरेंट तरीके से देखती है। और जैसे कि उसके अंदर उसके बात करने के तरीके से ना, उसके अंदर से एक सच्चाई और एक मासूमियत जो झलकती है ना, वो दिखाई देती है। बहुत ही मतलब जो बोलते हैं हम्बल लड़की है, बट शी इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड मिस्ट्रियस ऑल्सो। तो यही कहानी है और यही शालिनी की कैरेक्टर है। ये इनकी कहानी है। Shalini Shalini is somehow related to real life also,
बट शालिनी का भी कैरेक्टर यहाँ पे दो तरीके के दिखाया गया है. शी इज ऑल्सो एक्टेड इन डबल रोल. तो दूसरी जो शालिनी है टोटली डिफरेंट. शी इज़ वेरी बबली, बहुत ही मॉडर्न टाइप की होती है, बहुत ही बिंदास कैरेक्टर की होती है. तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था. बट ठीक है, दोनों कैरेक्टर को अलग अलग करके पोर्ट्रे करना इस बहुत बड़ी बात है और जो मैंने किया है. वीर सर मतलब एक्ट करने वाले हैं, उनका नाम काफी है, उनके अपने कैसा क्या सोचा है कि क्या लगेगा, क्या होगा, क्या जाएंगे? सी वीर सर के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मतलब उनके जैसे डायरेक्टर, मतलब ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री. और वो इतने हम्बल है, लाइक इतने हम्बल कि मैंने कभी आज तक ऐसे इंसान को देखा ही नहीं था. मतलब बहुत ही रेयर इंसान ऐसे होते हैं. और उनका जो जितने भी वो राइटअप, मतलब जो भी स्टोरीज लिखे हैं, जो भी फिल्में वो बनाए हुए हैं, मतलब ऑल आर वेरी स्पिरिटेड मूवी. एंड उनका जो फिल्म को देखने का नज़रिया बहुत ही डिफरेंट होता है. लाइक जब अभी सेट पे अगर कोई मतलब प्रॉब्लम आती थी, कुछ भी हम लोग का एक्टिंग में प्रॉब्लम आता तो ही इज़ वेरी कूल. मतलब बहुत ही आराम से आते थे, प्यार से समझाते थे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे. ऐसा नहीं कि गाली, मतलब एक्टर को डराते नहीं थे, बहुत ही कूल हैंडल करते थे. एंड मैं बोलूँगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे एक वर्सेटाइल डायरेक्टर बहुत ही रेयर है और उनकी बात कुछ अलग ही है. ये कभी डांट कभी खाना नहीं मिली? नहीं, कभी नहीं मिली. एक्ट्रेस को तो नहीं मिली, लेकिन दोनों लीड एक्टर्स को कुछ गाली है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारा एक्सप्रेशन ऐसा है, बट we didn't actually get any galis or anything. Like she's absolutely right. P sir is I think उनकी बहुत सारी qualities है, but when you actually meet him, when you spend time with him, तो ऐसा लगता है कि some qualities really stand out, such as his energy level. At this age, he never sits down. Like हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, कुछ भी है चेयर पर, हम बैठ जाते थे आधे एक घंटे के बाद, but he never sits down. मतलब जितने भी एडीज थे वहाँ जो यंग थे 25 ईयर या 6 ईयर और उनके साथ काम कर रहे थे, वो सबको भगा के रखते थे. तो शाम को सबकी हवा निकल जाती थी उनकी. और ये सर चलते रहते थे, कुछ देखना है, शॉट लेना है, कहाँ से दूर दूर जंगल में चले जाते थे, वो पीछे भागते थे. He's always focused towards जो भी शॉट लेना है, there was no compromise. Very focused towards what he wants. एंड ही इज द ओनली पर्सन जो सुबह 4 बजे से उठते थे और रात के 11 बजे तक काम करते थे. बाकी हम लोग सब सेट में लेट पहुंचते थे, वो सबसे पहले पहुंचते थे. इवन इफ आर्ट डायरेक्टर से पहले सर पहुंच जाते थे कहाँ पे क्या लगेगा देखने के लिए. अच्छा, रियल लाइफ में कभी आपकी अंदर आपने कुछ कहा हो कि यार ये क्या रोज कहती है अभी क्या कर रहा हूँ मैं. बाकी दोनों अगर आप दोनों के बीच बता दें देखो, आपके अंदर में क्या कह रही है? सबकी अंतरात्मा कहती है कि कुछ मेरी अंतरात्मा कहती है कुछ अलग काम करो, कुछ डिफरेंट हट के काम करो. मूवीज़ में जो भी है, हमारी जो प्रायोरिटी होती है सबकी लाइफ में, तो मैं जब भी सोचती थी कि कैसे ये फिल्म करूँ, ये करूँ, ग्लैमर रोल आजकल जैसे नॉर्मली करते हैं, बट अंतर्धुनी समथिंग डिफरेंट था. तो मुझे लगा कि अंदर से जो आवाज़ आई कि नहीं, ऐसी एक फिल्म में काम करो जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करे और आपका जो कैरेक्टर है लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे कि हाँ किसी ने एक्टिंग की है कुछ. आखिर में क्या कहना चाहिए ऑडियंस जो जो सब लोग कहते हैं कि प्लीज गो एंड वॉच द फिल्म व्हेन इट रिलीजेस. और वो टिपिकल डायलॉग रिपीट नहीं करना चाहते कि अलग पिक्चर है, बिकॉज आप रेड द स्क्रिप्ट यार. अब टेलिंग यू कि पहले तो सिर खुजाने लगते हैं, 3-4 बार तो पढ़नी पड़ती है, तब पता थोड़ा बहुत समझ में आता है कि क्या है पिक्चर के अंदर. एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन. it's a very good attempt to actually explore human psyche. साइकोलॉजिकल स्टूडेंट है, फिजिक्स की स्टूडेंट है, और लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं वेयर यू लूज कंट्रोल ओवर योरसेल्फ. सो आई डोंट थिंक, और अगर ऐसा कुछ दिखाया भी है तो वो साइकी लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे कभी नहीं दिखाया है. सो दैट वे दिस इज समथिंग दैट हैज नेवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर. सो आई जस्ट recommend that when you see the trailer and when you see the rushes and everything, I think जो typical जो वर्ग है जो ऐसी पिक्चरें देखते हैं, that definitely will appeal to them, and I encourage everyone to go and watch the film and support us. That's pretty much it. अगर किसी को देखना है ना, मतलब उनका फ़ोन साइलेंट करना पड़ेगा. एंड वो कभी भी जाके बाहर निकल के एक पॉपकॉर्न खरीदने के लिए नहीं सोचेगा. अगर सिंगल सेकंड भी मिस करते हैं तो समझने में उनको बहुत डिफिकल्ट है. बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे है. ऐसा नहीं है कि गाना है तो 5 मिनट में जाके वॉशरूम से आ जाओ, ऐसा नहीं है. पूरी पिक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखनी ही पड़ेगी.
पकड़ हाँ। थैंक यू थैंक यू